Hare Nama Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyatan Hare Nama Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyatan. Yeah. Okay. So, Hare Krishna to everybody, and a big warm welcome for our today's session of Bhagavad Gita. So, we'll start, and as usual, we'll start with prayers. Namo Vishnu Padaya Krishna Presthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namne Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunnivari Paschat Desha Tarine जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे नाना शास्त्र विचारणे निपुण षड धर्म संस्थापक लोकानां हितकारिण त्रिभुवन मन्य शरण्याकरो श्री राधा कृष्ण पदारविंद भजनानंदे नमत्तालिको वंदे रूप सनातन रूप श्री जीव गोपालको सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम् अपोहनं च वेदैश्च सर्वैः अहमेव वेद्यो वेदान्तकृत वेद विदेव चाहम्. Okay, Hare Krishna. So as usual, what we do is we do a recap. तो हम लोग देखते हैं हमने लास्ट टाइम क्या किया था. Veji Mataji or I think Anushka she was there but she couldn't hear it properly. So would you like to share something, Mataji? Sure. Hare Krishna. I think it was a wonderful session where we had some interesting takeaways. We discussed 2.40 and 2.41. Here, I think the important point is if we go in this path of bhakti, there is no loss. So you gave the example of Bharata Maharaj, how it is like his entire he'd at least taken 3 lifetimes, but in each of the lifetimes wherever he had progressed, he kind of started off with that in the material world. It is once we give up this body, next janma we are again going to become start from zero. But if in the spiritual world we had made some progress, then we start from, so if it's 40%, we're going to start from 40% onwards. We're not going to lose anything in that process. So the classic example was how Bharata Maharaj was initially, although being a great king, he decided to go to the forest, settle down there, to go in the path of bhakti. But then he gets distracted because of a deer. So in the next janma, it is like also this point that whatever you have in your mind at the time of your death is what you get. What you remember is what you get ultimately. So at that point, since he was so attached to the deer, he takes the a form of a deer in his next birth. But because of his bhakti and everything, whatever he did in the previous birth, he was still able to remember. And then finally, but again, this point also that the human form is the only way to actually reach our ultimate goal of Goloka Vrindavan. In any, so you were also talking about the planets, 7 planets above and 6 planets below. So if we don't focus on our bhakti, there's a possibility that we may go down also. So and then in that this thing you also said the human birth is the only one which will take us ultimately to Goloka Vrindavan. So then I think the other point you said is whoever is in the path of bhakti. This is 2.41. If you're in the path of bhakti,
the focus is just one. But if you're not in this path, then the intelligence is multi or many branched. So you gave an example of how if we are very clear about our goal, where we are going, it does not matter what mode of transport we are taking, or but our goal is clear. But if we have a very good, so you gave the example of, let's say if you're going to, Pune, it doesn't matter whether we are walking and going, or whether we are taking a bus and going, a train and going, and flight and going. But on the other hand, if it's multi-branch, then we will not reach our goal. So, for example, even if we have the, a great plane, fast plane, but we decide to go to Pune, then change and decide that we go to Goa, and then again change and say, we're going to Mumbai. So what happens is we are, completely deviated in our path. So the comparison here is, if our one focus, ultimate focus, is in Krishna, then there is no problem whatever path that we take to get there. But if we, pray to the demigods and all that, we are going to be lost somewhere. And the last point that you said was, ultimately just water the roots of the plant, because if you water the roots of the plant, Yeah. then ultimately Okay. everything else will grow. Hare Krishna. Thank you very much, Mataji. Very nicely you have summarized the whole thing, the whole class, a lot of points. So thank you very much for that. Thank you. And today we'll take go ahead with shloka number 42 and 43. तो आज हम लोग देखते हैं दूसरे अध्याय का श्लोका नंबर 42 और 43. I'll just share. Okay, I will repeat. यामिमां पुष्पितां वाचम्. If anybody wants to Yes. repeat. Yamimam pushpitam vacham प्रवदन्त्य विपश्चितः pravadantya vipaschitah वेदवादरतः पार्थ veda vadarata pata नान्यद् अस्तीति वादिनः nanyatastiti vadinah कामात्मनः स्वर्गपरा kamatmanasvatgapara जन्म कर्म फलप्रदाम् janma karma palapradam क्रिया विशेष बहुलाम् kriya vishesha bahulam भोगैश्वर्य गतिं प्रति भोगैश्वर्य गतिं प्रतिम. ओके इसी ट्रांसलेशन देखते हैं इसका ट्रांसलेशन. Men of small knowledge are very much attached to the flowery words of Vedas, which recommend various fruitive activities for the elevation to heavenly planes, resultant good birth, power, and so forth. Being desirous of sense gratification, opulent life, they say that there is nothing more than this. हरे कृष्ण. तो यहाँ पे भगवान क्या कह रहे हैं? तो यहाँ पे भगवान क्या कह रहा है? याम इमाम पुष्पिताम वाचम प्रवद्यन्ते विपश्चितः. अविपश्चितः means those who are less intelligent. And what they say, yam imam, these flowery words of Vedas, they are the only thing to be followed, and they argue Vedavada Ratha Partha. They argue on that, and they are very much attached to this flowery things. So what are the flowery? ये flowery यानी पुष्प जो है ये क्या है? जैसे हम लोग अगर देखें फुल वेदास अगर देखें तो इसका जो मेजर भाग है, that is almost you can say 60% of the Vedas is 60% of Vedas is Karma Kanda, and then balance short that is Gyan Kanda, and then there is Upasana Kanda. So it's very
हमें एकदम मेजर पोर्शन जो है ये वेद में कर्मकांड के बारे में। और कर्मकांड क्या है आप लोगों को पता होगा, लेकिन जस्ट टू रिपीट, मतलब क्या है ये, आप ये यज्ञ करेंगे तो आप स्वर्ग लोग जाएंगे, ये यज्ञ करेंगे तो आपको अच्छा सेहत मिलेगा, ये यज्ञ करेंगे तो आपको अच्छा लक्ष्मी मिलेगा। तो दिस काइंड ऑफ थिंग्स जो हम लोगों को कुछ मटेरियल भौतिक बेनिफिट देता है, इसको कर्मकांड कहा गया है। तो हम लोग आगे देखेंगे इसके बाद में क्या होता है, बट यहाँ पे ये जो कर्मकांड है, जनरली हमारे आचार्य या प्रभुपाद जी इसको बोलते हैं कि हम लोग कर्मकांड के ऊपर जाना है हम लोगों को, क्योंकि कर्मकांड जो है हमने अभी कुछ पूजा किया, जैसे नॉर्मली भी है जो वेदों को फॉलो नहीं करते वो लोग भी क्या करते हैं, एग्जाम आ गया तो हे भगवान, तुरंत मंदिर में गए, घंटी बजाया, भगवान में मुझे पास करा दो, मैं आपको 500 का 501 का आपको प्रसाद चढ़ाऊंगी या 1000 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी, लेकिन सो दैट इज लाइक ए बिजनेस। प्रभुपाद जी बोलते हैं दिस इज नॉट लव, दिस इज बिजनेस। क्यों? क्योंकि वो बदले में कुछ चाहते हैं, मतलब उनका भक्ति नहीं है। ऑल्दो अभक्त होने से या नास्तिक होने से तो अच्छा है, कम से कम वो उसके लिए भगवान के पास जाए, लेकिन दैट इज नॉट टॉप मोस्ट, वो सबसे सर्वश्रेष्ठ नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उनको कुछ बदले में चाहिए, वो अगर नहीं मिलता है तो देन इमीडिएटली वो बोलते हैं अरे ये भगवान कुछ काम के नहीं है हमारे, छोड़ दो इनको। सो ऐसा होता है। बट ये जो चीजें हैं ऐसे वेदों में बहुत से जगह पे ऑलमोस्ट 60% ऑफ वेदास वहां पर यही सब दिया गया, आप ये करो तो ये फल मिलेगा, ये करो तो ये फल मिलेगा, ये करो। और ये जो अविपश्चित लोग हैं और लेस इंटेलिजेंट, प्रभुपाद जी उनको बोलते हैं मैन ऑफ स्मॉल नॉलेज, तो ये लोग जो है इससे ज्यादा आकर्षित रहते हैं कि वेद का पठन तो करते हैं लेकिन इनका फॉलो करते हैं, लेकिन इसका मेन उद्देश्य यही है कि हम लोग ये करेंगे तो इसका ये फल मिलेगा, ये करेगा तो ये फल मिलेगा। लेकिन इसके परे हम लोग आगे देखेंगे, भगवान बोलते हैं हम लोगों को इसके परे जाना है हम लोगों को। तो इसमें प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, हम लोग अगर देखें तो इसके पहले वाला जो श्लोक था उसमें कहा गया था व्यवसायत्मिका बुद्धि, यानी व्यवसायत्मिका मतलब एकदम फोकस्ड। जैसे घोड़े को हम लोग क्या करते हैं, उसको यहाँ पे ऐसा फ्लैप लगा देते हैं तो इज नॉट एबल टू सी साइड में क्या हो रहा है, वो जस्ट फोकस, तो सीधा देखता है एंड ही गोस स्ट्रेट। तो वैसे ही व्यवसायत्मक का बुद्धि जो वाले जो है उनका एक ही फोकस होता है, हम लोगों को भगवान का भक्ति करना है, हम लोगों को भगवान की पूजा करनी है। लेकिन जो दूसरे लोग हैं अव्यवसायत्मक का बुद्धि, उनका बुद्धि जो है वो उनमें कई शाखाएं होती हैं, उनको ये करो या ये करो या ये करो या ये करो, तो दे आर मेनी ब्रांच्ड। तो ये लोग जो है कभी मतलब समाधावना विधीयते, पिछले श्लोक में कहा गया था। तो अब क्या हो रहा है कि जो अव्यवसायत्मक का बुद्धि है, जो व्यवसायत्मक का बुद्धि है दे आर फोकस्ड, उनके बारे में तो होगा, लेकिन अब अव्यवसायत्मक का बुद्धि वाले हैं उनके बारे में भगवान यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो वो क्या बोलते हैं कि वो लोग क्या करते हैं, वो लोग इसी में पड़े रहते हैं, ये पूजा करने से ये फल मिलेगा, ये पूजा, क्योंकि दे आर अट्रैक्टेड टू स्मॉल पेटी बेनिफिट्स, छोटे छोटे जो भौतिक जो बेनिफिट्स हैं उससे काफी अटैच्ड है, और उसके लिए ये बहुत लोग आर्ग्यू भी करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं भगवान, जो कर्म योग है और कर्म कांड है दोनों को यहाँ पे कंपेयर करके आपको जो है उसके बारे में बता रहे हैं अर्जुन को। तो ये है इसमें। और यहाँ पे एक हमारे वैष्णव हैं भूरी जन प्रभु, वो ही इज मेंशनिंग दैट लॉर्ड is first time he's discussing mentioning about Vedas
इसके पहले अभी तक भगवत गीता में वेदा का कहीं पे मेंशन नहीं, तो हियर फर्स्ट टाइम लॉर्ड इज मेंशनिंग अबाउट वेदास टू अर्जुना। तो वो है तो men of small intelligence they are always attracted to such things, ऐसा। तो ये बात इसमें कहा गया है। और फिर कामात्मना स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदाम। तो उसमें क्या है कि ये कामात्मा यानी जिनको डिजायर है बहुत कुछ पाने का, पैसा, अच्छा धन, अच्छा हेल्थ, सुंदर शरीर, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग जन्म कर्म फलप्रदाम, वो उनको ये सब उससे प्राप्त चाहिए होता है, और इसके लिए वो कहते हैं इसके आगे और कुछ भी नहीं है। सो दिस इज देयर मेंटेलिटी, वो लोग ये इस प्रकार का उनका ये होता है। तो इज इट करेक्ट कि हम लोगों को ऐसा सोचना चाहिए कि हम लोगों को तो भगवान भी आगे बोलेंगे कि ये जो है ये छोटे छोटे बेनिफिट्स हैं, और हम लोग देखते हैं क्यों। समझो आज मैंने समझो 10 करोड़ डॉलर मांग लिए मैंने भगवान से और वो मिल भी गए मुझे, तो हाउ लॉन्ग आई कैन यूज इट। ऑलरेडी जो है हमारा लाइफ का बहुत सारा टाइम निकल चुका है, एंड नाउ वी हैव हार्डली कपल ऑफ इयर्स, नॉट some 10 years, 20 years, 30 years, 40 years according to our age. So उसमें हम लोग कितना यूज करेंगे, आइदर वो जो अमाउंट है that is going to get exhausted, हम लोग उसको खर्च कर देंगे, या हम लोग जो है we will expire, we will die because death is inevitable. डेथ जो हमने जिससे हम लोग देखा था कि जातक से ही ध्रुव मृत्यु, भगवान पहले उन्होंने कहा था दूसरे अध्याय में कि जिसने जन्म लिया है वो पक्का मृत्यु होगा। तो इट इज ऑफ नो यूज आई आस्किंग फॉर गुड हेल्थ, आस्किंग फॉर गुड मनी, आस्किंग फॉर गुड वाइफ, आस्किंग फॉर गुड, ऑल दिस थिंग्स आर गोइंग टू गेट एग्जॉस्टेड। भौतिक है, ये नश्वर है, इसके लिए हम लोग को वो मांगना चाहिए जो शाश्वत है, विच इज व्हाट इज एटर्नल, विच इज एटर्नल, वो मांगना चाहिए हम लोगों को। तो वो क्या है, वो सिर्फ भगवान का भक्ति है। और हमने जो लास्ट सेशन में देखा था जड़ भरत महाराज का, कि उनका जो भक्ति था इट वाज एटर्नल, इसीलिए उनको वो जो 3 जन्म थे, भरत महाराज से हिरण का शरीर और हिरण से जो जड़ भरत महाराज का शरीर था, वो भक्ति उनका आगे बढ़ता रहा, उनका कम नहीं हुआ। लेकिन उनका जो राज्य था, उनकी सुंदर पत्नी, उनका सुंदर बच्चा, उनका पूरा साम्राज्य, वो मृत्यु के साथ सब खत्म हो गया। तो दैट इज नश्वर। और इसीलिए हम लोगों को वी हैव टू बी इंटेलिजेंट, वी हैव टू आस्क फॉर, क्योंकि बोलते हैं ना कि जैसे कोई बड़ा राजा है, वो बोलता है आप क्या मांगना है आप मांगो, तो हम लोग उससे 10 करोड़ डॉलर, 100 करोड़ डॉलर मांग सकते, लेकिन आप वो बोले नहीं मुझे आप ही मेरे हो जाओ, तो उसका सारा जो धन है वही अपना हो गया। तो हमको धन मांगने की जरूरत नहीं है, हम लोग उसमें से 100 डॉलर भी खर्च कर सकते हैं और 100 करोड़ डॉलर भी खर्च कर सकते हैं। तो वैसे ही अगर हम लोग भगवान को मांग लेते हैं, भगवान ही हमारे हो गए, तो ये सब छोटा चीज़ों के लिए हम लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सो दैट इज वन थिंग। और यहाँ पे हमारे एक वैष्णव है, वो बोलते हैं कि नॉर्मली फ्लावर जो है उसको एक पॉजिटिव में यूज़ किया जाता है, पॉजिटिव वे में, कि ये दिस बेबी इज क्यूट लाइक अ फ्लावर, उसको रोज से या तो किसी मतलब अच्छे फूल से। बट यहाँ पे भगवान इसको नेगेटिव सेंस में यूज कर रहे हैं, मतलब इट इज जो है क्या बोलते हैं, याम इमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदंती विपश्चिता। तो जो लेस इंटेलिजेंट है वो ऐसे फ्लावरी, यानी ऐसे जो आकर्षित करने वाले हैं, ऐसे जो सेक्शन से आकर्षित हो जाते हैं। तो ये लॉर्ड इज यूजिंग फ्लावर इन ए नेगेटिव सेंस। और फिर या हम लोग देखते हैं कि जो लेस इंटेलिजेंट है वो इससे आकर्षित हो जाते हैं, जो अव्यवसायत्मक बुद्धि वाले हैं,
लेकिन जो व्यवसायित्मिका बुद्धि वाले हैं देर फोकस्ड कि हमें सिर्फ भगवान की भक्ति करनी। तो ये हम लोगों को इस जो श्लोक है 42-43 से देखने मिलता है। हम लोग अगला श्लोक देखते हैं, श्लोका नंबर 44। तो श्लोका नंबर 44 में शेयर करता हूँ या तो श्लोका नंबर 44। भोगैश्वर्य प्रसक्तानां भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तया अपहृत चेतसाम् तया अपृतचेतसाम् व्यवसायात्मिका बुद्धिः व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते। समाधौ न विधीयते। इसका हम लोग अनुवाद देखते हैं, ट्रांसलेशन। In the minds of those who are too attached to sense enjoyment and material opulence, and who are bewildered by such things, the resolute determination for devotional service to the Supreme Lord does not take place. तो यहाँ पे क्या भगवान कह रहे हैं कि भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, जो भोग और ऐश्वर्य से आसक्त हैं, भगवान यहाँ पे एक बहुत अच्छा वर्ड यूज करें, प्रसक्ता नाम। तो प्रसक्ता नाम का अगर हम लोग संस्कृत का हम लोग विच्छेद करते हैं, प्रचुर मात्रा में जो आसक्त हैं, दे आर नॉट ओनली अटैच्ड बट दे आर टू ओवरली अटैच्ड। प्रसक्ता नाम, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम। तो भोगा जो है जैसे सेंस एंजॉयमेंट, तो सेंस एंजॉयमेंट से जो काफी आकर्षित हैं, उनके बारे में यहाँ पे कहा गया है कि भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, उनका क्या होता है, तया अपहृत चेतसाम, उनका बुद्धि अपहृत यानी ले लिया गया है, चेतसाम उनका जो चेतना है, उनका जो बुद्धि है, दैट इज बीन ओवरटेकन। तो यहाँ पे भगवान क्या बोल रहे हैं, जो ज्यादा भोग और ऐश्वर्य से आसक्त होते हैं, उनका बुद्धि चला जाता है। फिर व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। तो जो व्यवसायत्मिका बुद्धि, जो भगवान पहले भी जिसके बारे में बात कर रहे थे, तो वो जो है दैट वो उन लोग को प्राप्त नहीं होता। समाधौ न विधीयते, समाधि जो है, तो हम लोग हमेशा सुनते हैं ये वर्ड समाधि, लेकिन इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है वो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। नॉर्मली समाधि मतलब लोग सोचते हैं बस आंख बंद करके बैठ जाओ, समाधि में हो गया। लेकिन समाधि में वो मतलब फॉर एक्सटर्नली ए पर्सन जो देख रहा है उसके लिए वो समाधि में बैठा, लेकिन उसके माइंड में क्या चल रहा है, वो क्या चीज के बारे में सोच रहा है, किसी स्त्री के बारे में सोच रहा है, धन के बारे में सोच रहा है, क्या सोच रहा है वी डोंट नो, बट दैट इज नॉट समाधि। सिर्फ आंख बंद करके बैठना इज नॉट समाधि। समाधि मीन्स टू फोकस कंप्लीटली, हमारा जो माइंड है, हमारा जो मन है, वो पूर्ण रूप से भगवान के श्री चरण कमलों में उनको लगाना, तो दैट इज समाधि। तो वो जो है वो नहीं हो पाता किनका, जो भोग और ऐश्वर्य में लगे रहते हैं। तो भोग we know normally it is a simple word, those who want to enjoy। तो भगवान को भी जब हम लोग लगाते हैं तो हम लोग क्या लगाते हैं, भोग लगाते हैं। हम लोग भगवान को हम लोग जो ऑफर करते हैं दैट इज कॉल्ड भोगा, और वो जब भगवान उसको जब ग्रहण कर लेते हैं देन इट बिकम्स प्रसाद, यानी भगवान when it accepts then it becomes his mercy। तो वो है, तो ये फर्क होता है। तो वट एवर लाइक ना, जैसे हम लोग भी कभी कभी इन चीज़ों को समझ नहीं पाते, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस। भोग जो है इट इज नॉट गुड, एंड ऐश्वर्य, तो ऐश्वर्य जो है मतलब हैविंग गुड ऑपुलेंस। लेकिन एक चीज हम लोग को यहाँ पे समझना है कि डज दैट मीन भगवान ये बोल रहे हैं कि हमारे पास ऐश्वर्य नहीं होना चाहिए? नो। हम लोग अगर देखें तो भगवान के जो बड़े बड़े भक्त थे, जैसे अमरीश महाराज है, युधिष्ठिर महाराज है,
प्रहलाद महाराज है, ध्रुव महाराज है, दे वर किंग्स। जड़ जो महाराज भरत थे, दे वर किंग्स, और सारे पृथ्वी के सम्राट थे। बट दे वर इंटेलिजेंट, वो भगवान के भक्त थे, इसलिए उनको पूर्ण पता था कि भगवान का ये जो एनर्जी है, जो लक्ष्मी है, ये इसको कैसे यूज करना है। वो भोग में नहीं लगाते थे उसको, वो भगवान की सेवा में लगाते थे। तो जनरल टर्म्स में अगर हम लोग देखें तो भोग और जो ऐश्वर्य है वो हम लोगों को नीचे गिरा देता है, हम लोग को हमारा पतन करवाता है। जैसे हम लोग देखते हैं, जैसे अभी जो दामोदर महीना हुआ था, कार्तिक महीना, तो उसमें भी हम लोगों ने स्टोरी सुना था, नल कुबेर और मणिग्रीव। हैव यू हर्ड दैट स्टोरी, एनीबॉडी? Yeah, अनुष्का, yes, I know, Prabhuji. you must have heard. अनुष्का जी, पूजा जी, I haven't. Yes, I also know the story. ओके, पूजा माता जी हो। तो फॉर अनुष्का के लिए हम लोग एक बार रिपीट करते हैं। तो कुबेर भी नो, कुबेर जो है वो धन के मतलब ट्रेजरर, मेन ट्रेजर, भगवान के जो ट्रेजरर है, दैट इज कुबेर, एंड ही इज द वेल्थिएस्ट पर्सन। तो इवन दिवाली के टाइम पे जब लक्ष्मी की पूजा होती है तो कुबेर जी की भी पूजा करते हैं बहुत से लोग। तो कुबेर इज द, यू कैन से, इज लाइक ए वेरी रिचेस्ट पर्सन। और जनरली भी हम लोग देखते हैं, जैसे जैसे जो हुआ हाईली मतलब फिल्दी रिच बोल सकते हैं, फिल्दी रिच, उनके बच्चे एकदम बिगड़े हुए होते हैं। और हम लोग देखते हैं बड़े बड़े जो स्टार्स हैं, शाहरुख खान की जो बेटी है सुहाना, उनका बेटा है उसका आर्यन, दे आर मतलब ड्रग्स में और पता नहीं क्या क्या। और वैसे देखे तो बहुत सारे हैं, बट जस्ट ये दिस इज क्लोज, आई एम पिकिंग अप दिस एग्जांपल। तो they are filthy rich and they tend to get spoiled because they have so much wealth. And same thing happened with कुबेर जी। कुबेर जी के दो बेटे थे, one is नल कुबेर and other was मणिग्रीव। तो being so rich, what happened कि they lost all their mind, मतलब हमारे पास धन है तो क्या होता है कि once they were at the in the banks of मंदाकिनी and they were full naked, और स्त्रियों के साथ में थे, they were just playing around and Narad Muni was passing. तो all the girls they were shy, they all ran away, but they were so much intoxicated, इतना नशा किया हुआ था उन लोगों ने कि मतलब ये भी भूल गए कि कोई वहाँ ऋषि मुनि आए हैं, मुझे उनको प्रणाम करना है, I have to pay my obeisances. They were just standing. With this नारद मुनि realized कि कितना जो है गलत प्रभाव हुआ है इन पे। So शास्त्र says कि out of mercy he cursed them. नॉर्मली दुर्वासा मुनि जो है वो गुस्से में आके श्राप देते हैं, उनका सेवा बराबर नहीं तो जा मैं तुझे श्राप देता हूँ, तेरा ये हो जाए तो वहां जा, मृत्यु लोक चला जाए ऐसा। बट नारद मुनि इज नेवर लाइक दैट, ही इज सो कंपैशनेट। बट व्हेन ही सॉ, उनका जो कंडीशन देखा कि दे हैव मतलब आउट ऑफ ना धन का जो इतना मद उनका चढ़ा है, दैट इंटॉक्सिकेटेड सो मच, एक तो नशे का है प्लस द वेल्थ की, दे हैव लॉस्ट ऑल देयर कंपोजर। बोलते हैं आई कर्स यू टू बिकम ट्रीज because trees are always naked. You want to stay naked? Okay, go and stay naked like trees. तो ये जब श्राप मिलता है तब मुझे श्राप मिलता है तब उनका बुद्धि ठिकाने आता है, and then they fall down at the feet of Narad Muni. Please forgive us. Then he says, okay, I will do one thing. Curse like ना, it's like a bullet. एक बार निकल गया तो निकल गया, it cannot be taken back. तो बोलते curse is given. Only I can do one thing. I curse you that you become trees in the house of Nanda Maharaj, where you will be able to see जो उनके पुत्र हैं भगवान कृष्ण हैं, उनका लीला तुम हमेशा देख सकोगे और उनके हाथों से तुम्हारा उद्धार होगा। तो ये जो लास्ट मंथ था अभी दामोदर मंथ, उसमें ये पास टाइम हुआ था एंड भगवान कृष्ण लिबरेट्स देम। तो व्हाई वी केम टू दिस पॉइंट वाज भोग एंड ऐश्वर्य, दिस कैन बी leading us down. So we have to be very careful whatever we have. बोलते ना, with the power comes responsibility. We have to be very careful कि we need to, if we have even good wealth and opulence, how I have to use it, and that should be used
in the service of the Lord properly. If not we use for ourselves, then we are going to go to hellish condition. इस जन्म में हम लोग सारा धन खर्च करके जो चाहिए करेंगे, लेकिन उससे जो पाप कर्म हम लोग जमा करेंगे उससे नेक्स्ट जन्म में इवन मनुष्य जन्म मिलेगा कि नहीं, इवन दैट वी डोंट नो. Even if we get, we may be some in a very bad condition, very bad shape. So we have to be very careful. This is what Lord is saying. भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानां तया अप्रत्यचेतसा, उनका बुद्धि उनका चला जाता है. So this is what is said here. And there is one Bhurijan Prabhu, वो कहते हैं कि कर्मकांडीज cannot fix their minds on the supreme because they are always thinking, अरे मुझे ये भोग करना है, अच्छा मुझे अच्छा हेल्थ चाहिए, ओके तो ठीक है मैं ये वाला ये करता. तो उनका माइंड इज ऑलवेज ऑन सेंस ग्रेटिफिकेशन, सो दे कैन नॉट फोकस ऑन द लॉर्ड. इट इज वन थिंग. एंड देन yeah, so this is you can say for this shloka. And yeah, this is for this shloka. And in next verse Krishna will describe now if someone with this mentality, how to overcome, what is to be done to overcome this mentality. He will give it in this next shloka, which is shloka number 45. So we'll see shloka number 45. Yeah, can you see? Yes, Prabhuji. Yeah, thanks. Okay, so I will read and you can repeat after me. अनुष्का एंड पूजा जी आप लोग भी ट्राई कीजिए. ओके. त्रैगुण्य विषया वेदा, त्रैगुण्या विषया वेदा, निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, निर्द्वन्द्व नित्य सत्वस्थो, निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वो, निर्योगक्षेम आत्मवान्, निर्योगक्षेम आत्मवान्. Okay, Anushka, you want to try? Sure, Babuji. I'll have to repeat after you. I don't think I'll be able to say it on my own. Okay. त्रैगुण्य विषया वेदा, Tregunya Vishya Veda, निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, Nistray Gunyo Bhavarjuna, निर्द्वन्द्वो नित्य सत्वस्थो, Nirdvando Nitya Satvastho, निर्योगक्षेम आत्मवान्. Niryoga. Can you please repeat it? क्षेम, निर्योगक्षेम आत्मवान्. Atmavan. थैंक यू अनुष्का. इट्स वेरी सिंपल. अगर हम लोग देखें तो संस्कृत ऊपर वाला जो है, इफ वी ट्राई टू रीड दैट वी माइट गेट कंफ्यूज्ड. जो हिंदी वाले हैं मे बी दे मे बी एबल टू डू सो, बट प्रभुपाद इफ यू सी उन्होंने, अगर हम लोग देखें हमारे जो कई महाराज हैं, दे आर ऑल वेस्टर्नर्स, उनको संस्कृत का कुछ भी नहीं पता, बट प्रभुपाद हैज डिजाइन्ड दिस such beautifully that even Westerners, one who doesn't know anything Sanskrit, like I doesn't know anything about Sanskrit, but still I am able to read this. So I will tell you what are the key things in this. If you see try, so if there is nothing above a, then you have to read it as a, and if there is a dash above a, then you have to read it as a. We know a, e, e. So that thing, it is trai gunya vishay
and if it is only S, there is nothing, then it is to be read as sa. And if there is a dot below or a line above, then we can read it as ksha. So Traigunya Vishaya Veda. So that's why we read it as Veda, and there is a dash. So it becomes very simple. You can try reading this, and I think आप लोग धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे आप लोग, so you will be able to read this shloka very nicely. Okay, so we'll see translation and purport. So translation Anuvad. The Vedas mainly deal with the subject of the three modes of material nature. O Arjuna, become transcendental to these three modes. Be free from all dualities and from all anxieties for gain and safety, and be established in the self. तो यहाँ पे भगवान अब क्या बोल रहे हैं? He's saying त्रैगुण्य विषया वेदा. तो विषय, वेदों का विषय क्या है? विषय वेदा. त्रैगुण्य यानी तीन, त्रय यानी त्रि यानी तीन, गुण. तो ये तीन गुण क्या है? Does anybody know? Maybe we must have heard this. तीन गुण के बारे में है. Yes, very good, nice. सत्व गुण, रजोगुण and तमोगुण. I think ये आपने सुना होगा. I think Anushka, even you must have also heard this. रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण. Yeah. Yes, I've heard. So yeah, good. So what is it? We'll just see briefly. तो तमोगुण is mode of ignorance. One who feels very sleepy. इसको डिटेल में हम लोग देखेंगे बाद में. तो Lord Krishna also says everything, the whole world is divided into these three gunas: rajogun, tamogun and sattvagun. So even a person, food, even the day, everything is divided into these three things. So a person who is in tamogun, how he behaves, a person who in rajogun, how he behaves, and sattvagun, how he behaves. So everything is divided. Like a person, you can make out whether he's a rajoguni, tamoguni or sattoguni. So just briefly, tamogun is mode of ignorance, who doesn't know anything. Then rajogun, who is very passionate, mode of passion, and sattvagun, that is mode of goodness. So this is simple thing, just to simplify. तो यहाँ पे ये भगवान बोल रहे हैं कि ये जो वेदों का मेन विषय है, ये तीन गुण के बारे में, त्रैगुण्य विषया वेदा. एंड देन फर्दर ही सेइंग निस्त्रैगुण्य भवार्जुन. ही सेइंग त्रैगुण है तो निस्त्रैगुण, लाइक ही इज सेइंग बिकम beyond this nistraigun. You can say where he is using nistraigun, nirdvando, niryogakshema. So ni means it is opposite. Yogakshema means welfare and gain, but niryogakshema is opposite of that. So he is saying nistraigunya bhavarjuna. You have to go beyond that. So he is saying that, and then further he is saying nirdvandva, be free of duality. Nitya sattva, always establish yourself in sattva. And niryogakshema, free from gain and welfare. So you have to become like this. So now slowly he's seen, Lord told about, भगवान ने पहले आत्मा परमात्मा के बारे में कहा, पूरा ज्ञान दिया सांख्य योग का. उसके बाद में फिर भगवान ने कहा अच्छा ठीक है, ये नहीं कर सकते तो तुम एटलीस्ट जो है तुम युद्ध करोगे तो तुम्हें स्वर्ग प्राप्त होगा, मर गए तो, अगर नहीं मतलब तुम अगर जीवित रहे तो तुम ये धन का लाभ होगा. तो on the basis of karma kanda, like you will get benefit. So that is saying, and now again he is saying like you have to go beyond this. So this is what he is saying in this shloka, nistraigunya bhavarjuna, you have to go beyond this. But we see in earlier, हमने पहले देखा था कि ये जो तीन गुणों के बारे में था, उसके बारे में
वेद के बारे में कहा था कि वेदास जो है यू हैव टू फॉलो, एंड नाउ ही इज सेइंग यू हैव टू गो बियॉन्ड द वेदास. सो ही इज गिविंग. हम लोग को इनिशियली ऐसा लग सकता है कि ये कॉन्ट्राडिक्टरी है, भगवान पहले इसको करने के लिए कह रहे हैं, अभी ये उससे दूर होने के लिए कह रहे हैं. तो व्हाई इज दिट? बिकॉज भगवान हर चीज जो कहते हैं इट इज नॉट कॉन्ट्राडिक्टरी, लेकिन हम लोग उसको समझ नहीं पाते हैं. तो इफ वी अंडरस्टैंड, जैसे एक सिंपल मैं उदाहरण देता हूँ, जैसे एक छोटा बच्चा है, उसको हम लोग मैथ्स सिखाते तो कैसे सिखाते हैं कि दिस इज वन एप्पल, दिस इज अनदर एप्पल. तो इसको अगर मिला है तो कितना हो गया? इट्स 2 एप्पल्स. वो धीरे धीरे बच्चा जब बड़ा होता है तो ही अंडरस्टैंड्स दैट. तो उसको फिर बाद में 4th और 5th में सिखाते हैं कि इफ आई गिव यू 6 मैंगोज, इफ आई टेक 2 मैंगोज, हाउ मच विल बी बैलेंस? He says 4 mangoes. But उसी को बोलेंगे if I give 6 mangoes and if I take 7 mangoes, तो he will get confused. मेरे पास तो 6 है तो मैं 7 कहाँ से दूँ? But if you go higher in maths, it becomes -1. So this is all in different gradually he is increasing the knowledge. So ये same thing is going on कि जो knowledge है for a boy who is learning one apple plus one apple is 2 apple, and 6 mangoes minus 4 mangoes is 2 mangoes. He will not understand the minus wala factor. So that he has to increase his intelligence and he has to study. So that's why we are not able to understand. So that's why further he said you फॉलो द वेदास, तुम वेदों को फॉलो करो. और अब वो कह रहे हैं तुम इसको इसके परे जाओ. और हम लोग इसमें भी देखते हैं वेदों में, अगर हम लोग जस्ट अगर हम लोग देखें तो वेदों में जो है मांस खाने के लिए भी कहा गया. मैनी पीपल से कि अरे वेदों में तो कहा गया ना वी कैन ईट मीट, तो व्हाई कांट वी ईट मीट? बट फंडा ये है कि हम लोगों को मांसाहार नहीं करना चाहिए. अगर करना भी है तो भगवान ने खुद कहा अगर ठीक है तुमको मांस खाना है तो ओके, तुम एक काम करो, तुम ये पर्टिकुलर डे पे, अमावस के दिन, तुम ये पर्टिकुलर टाइम पे, एंड आफ्टर सो मच चैंटिंग सो मेनी मंत्रास एंड ये सब पूरा विधि करने के बाद में तुम खुद जो है तुमको चाकू लेके उसके जो whatever is the animal, it's a goat or a hen, इसकी आंखों में देख के बोलना है माम सह, और then you have to slit his throat. And what is the meaning of that माम सह? जैसे अब मैं तुम्हारा गला, as now I am slitting your throat, in next जन्म you slit my throat. माम सह, तो वो मानसा हो गया है. तो that unintelligent person जो बोल रहा है माम सह, तो someday he will be intelligent. अरे यार मैं ये क्या बोल रहा हूँ मांसा, मतलब अभी मैं तुम्हारा गला काट रहा हूँ, बाद में तुम मेरा गला काटो. That means someday I will become a goat and he will become man and he will slit my throat. So why I am doing that? Is that the purpose of life? तो धीरे धीरे his knowledge will increase. So that is the purpose. Vedas is designed in such a way that right from topper to a small boy who's 3 years old, 4 years old, he's in nursery, everybody can fit into that category and he can do bhakti. ऐसा नहीं, मतलब भगवान ने ऐसा नहीं है कि मतलब इट्स नॉट लाइक ए बिग यूनिवर्सिटी की ओनली जो 98 एंड अबव है उन लोग को ही यहाँ पे एडमिशन मिला. नहीं, इवन जिनको 0 मिलता है, जिनको माइनस मिलता है, एवरीबडी सब भर्ती हो जाओ यहाँ पे. एंड स्लोली अकॉर्डिंग टू योर इंटेलिजेंस यू लर्न व्हाट इज वेदास, भगवान कौन है, क्या है, कैसे भक्ति करना, एंड धीरे ग्रेजुअली यू इंक्रीज योर इंटेलिजेंस, इंक्रीज योर लेवल, एंड देन यू बिकम अ डिवोटी. एंड हम लोग बाद में देखते हैं भगवान आगे बोलते भी हैं कि पाप, ये जो है मांस खाने से पाप लगता है. सो ही अंडरस्टैंड्स. सो मीट इज ऑल्सो अलाउड एंड टू अ सर्टेन क्लास ऑफ पीपल, बट दैट इज नॉट allowed for a person who is already following Vedas. जैसे जो है 1 plus 1 minus 1 is 0, लेकिन 1 minus 2 is -1. So that gradation is there that we have to understand. So
This is what we see here in Vedas. And further हम लोग आगे देखते हैं यहाँ पे प्रभुपाद जी क्या कहते हैं कि इससे दूर होना है, निर्द्वंद्व, no dualities, nitya sattva, always be established in self, and niryogaksema. So you have to become like that. And then further he is saying all the living entities who are in the material world like us, हम लोग इस भौतिक जगत में, we are struggling very hard for existence. And for them, the Lord, after creation of the material world, gave Vedic wisdom, advising how to live and get rid of material entanglement. When the activities for sense gratification, namely the Karma Kanda chapter, are finished, then the chance for spiritual realization is offered in the form of Upanishads. So when this Karma Kanda portion, हम लोग जब धीरे धीरे जब इसके पार निकलते हैं, then Upanishads हैं और फिर higher जो चीज है that is given. And सबसे टॉप मोस्ट है, प्रभुपाद ने हम लोग को बोला है कि सबसे टॉप मोस्ट, वी डोंट नीड टू रीड इवन वेदास, हम लोग सिर्फ भगवद गीता एंड भागवता, अगर ये दो अगर हम लोग अच्छी तरह से पढ़ते हैं, वी अंडरस्टैंड it is as good as reading all the scriptures, because this is, we can say, the cream of all the Vedas. जैसे अगर हम लोग 15वें अध्याय में भी देखेंगे तो भगवान बोलते हैं सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर् ज्ञानम अपोहनम च वेदेश्च सर्वैर अहम एव वेद्यः वेदांतकृत वेद विदेव चाहम. I am the one who has created these Vedas and I am to be known from the Vedas. So this is what he is saying. So we have to go beyond. And further Prabhupada is saying in his purport, one has to learn tolerance in the face of dualities. If there is some big कोई मान दे रहा है तो उसमें ज़्यादा हम लोग खुश नहीं होना है, और कोई अपमान कर रहा है तो हम लोग को दुखी नहीं होना है. इस dualities, मान अपमान, सुख दुख, तो इन सब से हम लोग को दूर रहना है. This is what he is saying. And then yeah, this is from shloka number 45. I think we are running out of time, so I will stop here. We have seen 42 to 45, तो हम लोग रुकते हैं यहाँ पे. And shloka number 46 will take next week. So thank you, and if there is any questions or any doubts or any comments, please let me know. Hare Krishna. Prabhuji, I just had one question. Yeah. In the Vedas, you said 60% is Karma Kand, and Yeah. then the remaining is Jnana Kand, and what was the other one you used? Upasana Kand. What does Upasana mean? Upasana means about devotion, about worshipping the Lord. Okay. One is Karma Kand. You do this, you will get this benefit. Right. Then is Gyan Kand. It's like Sankhya Yoga. And then there is Upasana Kand, how to worship the Lord. That is very small section. All this, both the sections are very small. I think Upasana Kand is very, very small. I think 60% is something. I don't remember the exactly figure, but major chunk is Karma Kand. Then next is Jnana Kand. There is a lot of philosophy, and then a very small section is Upasana Kand. But that whole thing cumulatively is given in Srimad Bhagavad Gita and Bhagavatam. If we understand Bhagavad Gita and Bhagavatam, we have read all the Vedas, all the 4 Vedas. Okay. Hare Krishna. Hare Krishna. Thanks, Prabhuji. Thank you, Mataji. Pooja ji, Anushka. No questions today. Thank you. Great set. Yeah, thank you. Thank you. Okay. तो अगर कुछ क्वेश्चन नहीं है तो विल स्टॉप हियर, एंड अगले हफ्ते हम लोग मिलते हैं
श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, श्री प्रभुपाद की जय, इस्कॉन गुरुवृंद की जय। हरे कृष्ण। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। हरे कृष्ण। So thank you. See you next week, next Saturday.